Hello, students. Welcome you all to our third session of our chapter number 2. Is matter around us pure? Okay, students, in the previous two sessions, we studied regarding different types of solutions, their properties, and various methods for separating the components from the given mixture. Okay, let us continue with those methods. Okay, students. Students, in the previous session, we discussed regarding evaporation method, sublimation method, centrifugation method, then chromatography method. In this way, we discussed various methods of separation. Let us start with another method, that is distillation method. First of all, when is this method used? This method is used for separating a mixture of miscible liquids by the boiling points, by the difference in the boiling points. Okay, what is the main thing here? First of all, we have a mixture of two miscible liquids. मिसिबल मतलब जो एक दूसरे में पूरा मिक्स हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रीवियस सेशन में एक एक्टिविटी किया था सेपरेटिंग फनल वाला, एंड दैट वाज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर टू इमिसिबल लिक्विड्स, जिसमें दो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं. वी हैव टुक द एग्जांपल ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल. ओके, उनको सेपरेट करने के लिए हमने सेपरेटिंग फनल यूज़ किया था. ओके, बट हियर वी विल टेक टू लिक्विड्स who are miscible in each other, they mix with each other. एकदम पूरा का पूरा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया है, तो उनको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? तो वी विल सेपरेट फर्स्ट बाय बॉइलिंग द मिक्सचर. हम पहले उसको बॉयल करेंगे, फिर कूल करेंगे, और उनके वेपर्स को हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, स्पेशली वी टेक द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी डिफरेंट. इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है. ऐसे दो लिक्विड्स हम लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वी टेक अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर. एसीटोन एंड वाटर दोनों कलरलेस लिक्विड है. एसीटोन एंड वाटर जब दोनों मिक्स हो जाए तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि भाई कैसे हम सेपरेट करें. ओके, तो व्हेन वी हीट द मिक्सचर, as you look in the apparatus, आप ये पूरा apparatus setup देख सकते हो. स्टूडेंट, दिस इज योर फिगर 2.9 इन योर NCERT टेक्स्ट बुक. NCERT टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पे फिगर 2.9 है. दिस इज डिस्टिलेशन मेथड. ओके, इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. Here in the container distillation flask, we take the mixture of water and acetone. Okay, and we heat the mixture. When we heat the mixture, what happens? Let us see. The acetone has a lower boiling point. The acetone has a lower boiling point, so it starts boiling first. ये पहले बॉयल हो जाता है, वाटर से पहले बॉयल हो जाता है, एंड इट बिकम्स इनटू वेपर्स. वेपर्स बनने लगते हैं. दोज वेपर्स राइज अप एंड पास थ्रू दैट सेटअप. यू कैन सी कि बाजू में एक देखो टेस्ट ट्यूब जैसा है, वहाँ से वो वेपर्स जो है पास होते हैं. ओके, व्हेन द वेपर्स पास थ्रू दैट सेटअप, है ना, दैट सेटअप इज सराउंडेड बाय व्हाट? वाटर आउटलेट. वहाँ पे वाटर आउटलेट सराउंड किया गया है, जहाँ पे हम कंडेंसर्स रखते हैं. क्या रखते हैं? कंडेंसर्स. दोज कंडेंसर्स व्हाट दे डू? दे कूल द वेपर्स. द एसीटोन वेपर्स आर पासिंग थ्रू दैट पाइप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, when the acetone passes, the vapors passes through that pipe like structure, the condenser cool the acetone. acetone को cool कर देता है, तो फिर से वो liquid बन जाता है, and that liquid acetone is collected in that separate test tube जो बाजू में एकदम लास्ट में दिया हुआ है. Okay, so once again students, what is happening over here? This is the distillation method. It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. Okay, we have taken the mixture of acetone and water. Acetone has lower boiling point, so it boils first. The vapors passes through that setup. Okay, where there is an water outlet, there is a water condenser also. That water condenser cools the vapors of the acetone, due to which it again becomes liquid and falls down, collected in the distillation test tube. Okay, in this way we can separate acetone and water. Okay, so this is distillation method, simple distillation method. Okay students, let us discuss another type of distillation method, which is fractional distillation method, where instead of two liquids we have more than two liquids. बहुत सारे liquids या बहुत सारे gases जब एक साथ mix होते तो उनको कैसे separate करते? For that we have another method.
Yes, this method is fractional distillation method. It is used for separating a mixture of two or more miscible liquids whose difference in boiling point is less than 25 Kelvin. Means कि हम लोग यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स लेंगे जो एक दूसरे में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, एंड द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में कितने कितने का फ़र्क होना चाहिए, लेस देन 25 केल्विन का फ़र्क होना चाहिए. The apparatus used for fractional distillation is similar to that used for the simple distillation. जो हमने पहले distillation method किया है, that apparatus setup will be enough for this fractional distillation also. Okay, the fractional distillation column has glass beads which increases the surface for the vapors to cool and condense. So actually what happens, students, when we take the mixture, देखो हमने देखो पूरा फ्लास्क में मिक्सचर लिया है. ओके, जैसे हम मिक्सचर को हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बर्नर, द लिक्विड जो जिसमें 3-4 लिक्विड है सपोज, तो जिस लिक्विड का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर फर्स्ट, एंड दैट वेपर विल पास थ्रू दैट बेंट ट्यूब. ओके, एंड इट विल कूल डाउन, क्योंकि वहाँ पे कंडेंसर से उसको कूल कर देंगे, एंड दैट लिक्विड विल बी कलेक्टेड इन द फ्लास्क, अनदर फ्लास्क. फिर एक लिक्विड जब खत्म हो जाएगा, देन द अनदर लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग. ओके, जिनका नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो स्टार्ट कर रहा होगा बॉइलिंग करने में, और उसके वेपर्स जब फॉर्म होंगे, दैट वेपर्स विल पास थ्रू दैट आउटलेट. ओके, इट विल पास थ्रू द कंडेंसर, फिर वो लिक्विड बन जाएगा, फिर उसको अलग सा फिर दूसरा कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेंगे. इन दिस वे टर्न बाय टर्न ईच लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड कन्वर्ट इनटू वेपर, और इसको हम सेपरेटली कलेक्ट कर सकते हैं. इन दिस वे वी कैन कलेक्ट द वेरियस liquids from the mixture. This fractional distillation is used for separating the components of petroleum. Students, आपने 8th स्टैंडर्ड में fractional distillation of petroleum किया है. पेट्रोलियम में से we can separate various components like petrol, diesel, naphtha, kerosene, all सारे components हम लोग separate करते हैं by this fractional distillation method. Even the separating the different gases from air, एयर में से भी अलग अलग गैसेस जो सेपरेट करना है, तो उसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं. दैट वी विल डू नाउ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. व्हाट हैपन्स इन दिस मेथड? तो एक्चुअली एयर इज कंप्रेस्ड. एयर को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन द एयर एंड द एयर इज कंप्रेस्ड. ड्यू टू द कंप्रेशन इट गेट्स कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. हम जब प्रेशर लगाते हैं और कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, एंड द एयर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म टू गेट लिक्विड एयर. एयर के ऊपर आप जब प्रेशर लगाओगे और उसको टेम्परेचर कम कर दोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एयर. द लिक्विड एयर इज देन अलाउड टू वार्म अप स्लोली. अब जब लिक्विड एयर आ गया ना, उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे. धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करेंगे. अब इसमें अपना वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड काम आएगा. जिस लिक्विड गैस का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो सबसे पहले बॉयल होके वो सेपरेट हो जाएगा. फिर उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉयल होकर सेपरेट हो जाएगा. इन दिस वे, ड्यू टू द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस गैसेस, दे विल बॉयल एट द डिफरेंट टेम्परेचर, कन्वर्ट इनटू वेपर, pass through that bent tube. Again the condenser will convert them into liquid and they will be collected in the various flasks. Okay, in this way we can separate the different gases at different heights. We can see the chart also. Okay, air, it is compressed and cooled by increasing the pressure and decreasing the temperature. So we get liquid air. This liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column. Okay, then what happens, the gases get separated at different heights. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट द बॉइलिंग पॉइंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज -183 डिग्री सेल्सियस. then the boiling point of argon is -186 degree Celsius, and the boiling point of nitrogen is -196 degree Celsius. This figure is figure 2.11. 2.11 फिगर है ये, अपने NCERT टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं ये फ्लो डायग्राम. Okay, if we want oxygen gas from the air, we have to separate out all other gases present in the air. अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो आपको बाकी सारे गैसेस को सेपरेट करना पड़ेगा. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. Then what happens? The liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column.
where the gases get separated at different heights depending upon their boiling points. अपने boiling point के हिसाब से अलग अलग गैस सेपरेट हो जाएगा, इस तरह से आपको लिक्विड ऑक्सीजन जो चाहिए वो भी मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, हियर यू कैन इवन रेफर फिगर 2.12. 2.12 फिगर जो है वो यूज़ किया गया है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर. ओके बिकॉज इट्स अ हैवी डायग्राम सो आई हैव नॉट शोन हियर. ओके इसमें आप देख सकते हो दैट एयर इज पास्ड इनसाइड. ओके फ्रॉम द स्टार्टिंग फिल्टर एयर को हम अंदर भेजते हैं वेयर इट इज़ अंडर प्रेशर. इट इज़ अंडर प्रेशर. व्हेन द एयर इज़ अंडर प्रेशर इट्स बिकम्स हॉट एयर. ओके द हॉट एयर इज़ अलाउड टू पास इनसाइड वेयर इट इज़ कूल्ड. उसको कूल करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, ड्यू टू विच इट बिकम्स लिक्विड. ओके लिक्विड बन जाता है. जैसे उसको कूल करते हैं तो सबसे पहले उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाता है. वाई? बिकॉज on cooling the gaseous carbon dioxide it will not become liquid, it will become directly dry ice. वो गैस से सीधा क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा. इट इज़ अ सप्लीमेटिंग सब्सटेंस. सो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस बन के सेपरेट हो जाएगा. ओके इट विल बी सेपरेटेड थ्रू अ सेपरेटर. देन on again cooling we get liquid air where it is allowed to now expand through an expansion jet. जहाँ पे एक्सपांशन जेट होता है वहाँ पे उसको एक्सपांड किया जाता है, जहाँ पे उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स द नाइट्रोजन आर्गॉन दे ऑल गेट सेपरेट आउट एट द डिफरेंट आउटलेट्स. अलग अलग जगह से सेपरेट हो जाएंगे एंड लास्टली वी विल गेट लिक्विड ऑक्सीजन. So you can also refer this diagram also. It is figure 2.12 on page number 23. ये 23 पेज का ये डायग्राम भी आपको देखना है. Okay students. Now one more method of separation of components is crystallization method. Okay, actually the solids are purified by using crystallization method. Crystallization is the process of obtaining a pure solid in the form of crystals from its solution. आपके पास एक मिक्सचर है, सोल्यूशन का मिक्सचर है. ओके उसमें से हमको प्योर सॉलिड जो है क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल मतलब टुकड़े के फॉर्म में मिलना, पीसेस के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक. फॉर एग्जांपल बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. उसके सोल्यूशन में से हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉपर सल्फेट के पीसेस निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिजॉल्व 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. जैसे कोई इम्प्योर कॉपर सल्फेट है उसको डिज़ोल्व कर दो 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को वाटर में. ओके फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़. आप उस सोल्यूशन को, बिकॉज कॉपर सल्फेट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूनिफॉर्मली मिक्सड इन द वाटर. एकदम यूनिफॉर्म ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके उसके बाद उसको फिल्टर पेपर में से पास करो. वंस यू पास थ्रू द फिल्टर पेपर द इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड. नाउ व्हाट यू डू, यू इवापोरेट द सोल्यूशन. उस सोल्यूशन को बाहर रख दो, एक डिश में रख के, चाइना डिश में रख के बाहर धूप में रख दो. ऑल द वाटर विल बी इवापोरेटेड एंड यू विल गेट द पीसेस ऑफ कॉपर सल्फेट विच आर वेरी ब्लूइश इन कलर. यू कैन सी द प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. ब्लू कलर के टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं. ओके दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन मेथड. मतलब उसमें क्या करते हैं, पहले उसका लिक्विड ले लेते हैं वाटर में मिक्स करके, फिर उसको हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, सो दैट द इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड. Once the impurities are removed, then evaporation process is used so that water goes out and the crystals are remained. Okay. Now, crystallization technique is better than simple evaporation. आप ये बोल सकते हो कि ये तो इवापोरेशन जैसा है, तो इवापोरेशन जैसा है लेकिन इसमें पहले हमने क्या किया, पहले हमने फिल्ट्रेशन किया उसके बाद इवापोरेशन किया. ओके इसी के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन इवापोरेशन टेक्निक. एंड वाई इट इज़ बेटर? बिकॉज सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर may get charred on heating to dryness and some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation these contaminate the solid. मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसे होते हैं कि फिल्ट्रेशन के बाद भी रह जाते हैं, तो इवापोरेशन टेक्निक के बाद ये क्रिस्टल्स में रह सकते हैं. इसी के लिए हम इम्प्योरिटीज़ को और अच्छी तरह से फिल्टर करते हैं. ओके और क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं. ओके सो दैट वी गेट प्योर क्रिस्टल्स. इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए. What are the applications of crystallization technique? There are some applications also. It is given on page number 23 actually students. Page number 23 में सेकेंड साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पहले के 2 पॉइंट्स जो है वो ये है कि वाई क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक. वो 2 पॉइंट्स आपको लर्न करने के. वाई क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक. और उसके बाद 2 पॉइंट्स दिए हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक.
What are the applications? Purification of salt that we get from sea water, है ना. क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ यूज टू गेट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर. हमको प्योर सॉल्ट मिलता है सी वाटर से बाय दिस टेक्निक. सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स. व्हाट इज़ एलम? फिटकरी. स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे घर पे जब पानी की टंकियाँ होती है ना, उसमें कई बार फिटकरी डालते हैं. वो फिटकरी क्या करता है? सारे इम्प्योरिटीज़ को नीचे कलेक्ट कर देता है और हमको साफ़ पानी ऊपर से मिलता है. ओके, तो उसके क्रिस्टल्स को भी हमको अगर हमको लेना हो तो भी हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से ही लेते हैं. So this is crystallization technique. Okay students. Now students, let us discuss how purification of drinking water is done. हमारे घरों में जो पानी आता है म्यूनिसिपैलिटी का, उसका प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है. Let us see. It is done in 4 stages. First of all, water from a river or lake is brought through canals or long pipes to the water work where it is mixed with the required quantities of alum and soda lime solutions. मतलब जो रिजर्वायर है, हमको रिवर का वाटर या लेक का वाटर जो हमको चाहिए पीने के लिए, उसको सबसे पहले एक टैंक में लेके आया जाता है. एंड इन दैट टैंक व्हाट इज़ एडेड? एलम एंड सोडा लाइम. मैंने बताया था अभी एलम मतलब क्या होता है? फिटकरी. एलम एंड सोडा लाइम इज एडेड टू दैट, है ना. व्हाट इज दिस एलम एंड सोडा लाइम डू? इट विल ब्रिंग ऑल द इम्प्योरिटीज एट द बॉटम. सारे इम्प्योरिटीज़ को खींच के बॉटम में लेके आएगा. These substances react with one another to form aluminium hydroxide, a jelly-like sticky solid. It is then pumped into big tanks, big settling tanks, where most of the suspended impurities settle down in 2 or 3 days. अब इस टैंक में से पानी को दूसरे बड़े से सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, जहाँ पे पानी को 2 से 3 दिन रखा जाता है, so that all the impurities get settled down. All the impurities get settled down there. Now the clear water still contains some suspended matter. It is passed through successive filters. That water still contains some matter. कुछ impurities होते हैं. So it is passed through many filters of boulders, gravel, coarse sand and fine sand. इस तरह से अलग अलग फिल्टर में से पास किया जाता है. वाटर है, फाइन सैंड है, ग्रेवल है, कोर्स ग्रेवल है, इन सब में से इसको पास किया जाता है. द क्लियर वाटर फ्रॉम द फिल्टर्स इज क्लोरिनेटेड. अब ये जो क्लियर वाटर है इसको एक टैंक में कलेक्ट करते हैं, वेयर क्लोरीन गैस इज passed through that water. Students, why chlorine gas is passed through that water? Because by passing the chlorine gas, the water becomes germ free. हम वाटर को डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं, उसको जर्म फ्री. अगर कोई जर्म्स अगर पानी में रह जाए तो वो ये इधर सारे में तो सेपरेट नहीं होगा. जर्म्स तो सेपरेट नहीं कर सकते आप ऐसे अलग अलग फिल्टर टैंक्स में. जर्म्स को किल करने के लिए हम उसमें क्या पास करते हैं? क्लोरीन गैस. सो क्लोरीन गैस इज पास थ्रू दैट वाटर. इट इज़ कॉल्ड क्लोरिनेशन. एंड देन इट इज़ पास टू द रिजर्वायर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिटी. उसके बाद वो जो है हमारे जो बड़े बड़े वाटर टैंक्स होते हैं वहाँ से हमारे घरों में आता है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ डन. स्टूडेंट्स, वी आर रेफरिंग टू फिगर 2.13 इन आवर NCERT टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 24. आप वो फिगर देख सकते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. ओके स्टूडेंट्स, now students, let us discuss about the topic of physical changes and chemical changes. Okay, what do you mean by physical changes and what do you mean by chemical changes? The change in which only transformation of state is happen, no new substance is made, are called physical changes, and these changes are reversible. मतलब ऐसा चेंज इन विच ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस. मतलब खाली सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बन रहा है, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज फॉर्म्ड. ओनली द फिजिकल स्टेट इज चेंज्ड, नो न्यू मैटर इज फॉर्म्ड. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. देन इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, एंड सच चेंजेस आर रिवर्सिबल. हम रिवर्स कर सकते हैं इनको. एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस. इवन इफ द आइस इज मेल्टेड इट विल रिमेन H2O, वाटर ओनली. फिर से वाटर को अगर आप बॉयल करोगे तो वेपर बनेगा, वो भी H2O ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं होगा, वो वाटर वेपर वाटर ही रहेगा. अंडरस्टूड? तो सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. ओके स्टूडेंट्स, सब मोर एग्जाम्पल्स आर कटिंग ऑफ ट्रीज. ट्री को कट करोगे तो क्या होगा? फिजिकल चेंज. देन मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, है ना. बटर है, पहले सॉलिड होता है, तो पैन में डालो तो थोड़ा हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, तो इट विल रिमेन बटर ओनली. सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज. ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट यू मीन बाय केमिकल चेंज. A chemical change means what? In this change, a new substance is made.
Okay, after the change a new substance is made, and even the new substance has some different chemical properties from the initial substance, and these changes are called irreversible changes. What are they called? Irreversible changes. मतलब इसको वापस से तुम रिवर्स नहीं कर सकते. Those are chemical changes. For example, cooking of food. पहले आपके पास रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, उसको आप कुक करते हो तो उसके बाद कुकड वेजिटेबल्स हो जाते हैं. ओके, दैट इज़ अ केमिकल चेंज. आप वापस से कुकड फूड में से रॉ वेजिटेबल्स नहीं लेके आ सकते, रॉ फूड नहीं लेके आ सकते. ओके, सिमिलरली रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट हो जाना, कोरोजन होना, जंग लग जाना, है ना, वी कैन नॉट रिवर्स बैक. ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर ऑल व्हाट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. सिमिलरली बर्निंग ऑफ पेपर, once the paper is burnt it turns down into ashes, राख बन जाता है. Okay, we cannot get again paper from that ashes, so it is a chemical change. So I hope students you might be understanding what you mean by physical change and chemical change. On page number 24 का जो second side है, there is a classify given to you in your in-text question. Classify the following as chemical or physical changes. You can classify students on your own कि कौन सा change physical है और कौन सा chemical है. जिसमें new chemical substance बनता हो that is a chemical change. जिसमें only state of matter changes that is called physical change. Okay students. So students, by this we end our today's session. Students, in today's session also we continued with the various methods of the separation of components from a given mixture. Today we studied regarding distillation method, then fractional distillation method. Okay, we even did the fractional distillation of air. Okay, हमने air में से उसके component gases को separate करने के लिए fractional distillation method भी देखा. Then we saw crystallization method. Then we saw how water is purified, which reaches to our house, and then we discussed regarding physical and chemical changes. Okay students, we will continue with some more topics in the next session. Till then, thank you students.